Good morning, all of you, and my dear students. Welcome to the class. And this is your English textbook of class 10th, first flight. So, student, first of all, I would like to introduce you with the chapters of this book. So, have a look. They are the chapters of this book. You have to read all these chapters of this book in your syllabus. So, students, now without making any further delay, let's move on to chapter number 1. So, this is chapter number first, a letter to a God. Okay, God को एक letter. So, student, first of all, I would like to tell you the outline of this chapter, and then I will teach you this lesson in a detailed way. So, the story begins with a farmer. Look, here is the farmer. So, he was a farmer. He had the field of ripe corns dotted with flower. He hoped for downpour or at least a shower for his field. He was very happy to see huge mountains of clouds in the sky, that I get some shower or rain for my field. But suddenly, what happened? A strong wind began to blow with the large hailstones. The hail rained for an hour, and the field was white as it covered with salt. The corn was totally destroyed. The hail has left nothing for the poor farmer. He did not understand what to do, but he had a great faith on God. He believed so much in God, so he decided to seek help from the God. He wrote a letter to God demanding 100 pesos. 100 pesos is the currency of Mexican country, so he demanding 100 pesos. When the postman, he posted the letter, and when the postman read the letter addressing to God, he could not stop himself by laughing. But the postmaster, who was fat, amiable man, decided to help Lencho. He collected 70 pesos from his friends' charity and himself gave some part of his salary. The following Sunday, Lencho come to collect the money, but he was disappointed to find 70 pesos. He was so angry, and he wrote again a letter to God demanding rest of the money. He also wrote that the God should not send the money through the post office, because what he believed that the post office employees are bunch of crooks. So he has great faith on God, but he don't know. He has some doubt on the postman. So this is the human tendency. So without making any delay, let's move on to the main text. So we started reading. The house, the only one, is the entire valley, sat on the crest of low hill from the height, and could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, at least a shower throughout the morning. Lencho, who knew the field immediately, had come nothing else but see the sky toward the north east. अब यहाँ पे लेंचो का घर था एक हिल पर, और वहाँ से वैली, रिवर, सब कुछ नज़र आती थी. उसके पास एक फील्ड थी, उसमें उसको एक डाउनपोर यानी एक बरसात की ज़रूरत थी, जिससे कि उसको अच्छा बेनिफिट मिल सके. तो बस उसका एक ही काम था, रात दिन आसमान को देखना कि बारिश आ रही है नहीं. नाउ वी रियली गोइंग टू सम वाटर. वुमेन, द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस. अब ने उसने उसकी वाइफ को जाके कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बारिश होने वाली है. तो उसकी वाइफ ने कहा कि अगर गॉड ने चाहा तो ज़रूर होगी. तो और उनके जो बच्चे थे, ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जबकि जो स्मॉलर चाइल्ड थे वो दे आर प्लेइंग अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम फॉर ऑल. और वो जब तक खेल रहे थे, फिर उनकी मदर ने उनको खाना खाने के लिए बुलाया. Lencho had predicted big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching.
अब लेंचो ने प्रेडिक्ट किया कि बड़ी पानी की बूंदें आने वाली है, नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रही है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब जो लेंचो था वो बाहर चला गया अपनी बॉडी पर ठंडी ठंडी बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए। बट वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम देर आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और जब वो अंदर आया तो उसने कहा कि बाहर से रेन ड्रॉप्स ही फॉल नहीं कर रही है, ये क्या है, एक तरीके के पैसे है। बड़ी बूंदें है जो 10 सेंट है, ये एक यूनिट है पैसों की मैक्सिकन पीपल की। तो बड़ी बूंदें 10 सेंट है और छोटी बूंदें 5 है। विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स। और फिर उसने अपनी उसकी फील्ड के ऊपर देखा, उसके बारे में सोचा, और उसकी जो फील्ड थी वो पूरी रेन से कवर्ड हो गई थी, यानी दिख नहीं रही थी, एक पर्दा आ गया था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज स्टॉर्म बिगेन टू फॉल। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जो वो रेन थी वो तेज़ हो गई और बर्फ़ के ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब जो बारिश के जो ओले गिर रहे थे, हेल स्टोन जो गिर रहे थे, हेल्स जो गिर रहे थे, बच्चे उनको बाहर लेने के लिए गए और वो उनको ऐसे लग रहे थे जैसे कि मोती बाहर बिखरे हुए। तो फर्स्ट तो वो सब उस हेल स्टॉर्म को एंजॉय कर रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ कि उसने एक्सक्लेम किया कि ये जो रेन है ये जल्दी क्विकली गुजर जाए, ये रेन जल्दी क्विकली गुजर जाए। लेकिन वो रेन ज़्यादा 1 घंटे चली और उसने क्या करा कि सारे कॉर्न फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और पूरा जो एरिया था वो एक तरीके से वाइट कलर से ढक गया कि जैसे कोई चारों तरफ नमक बिछा हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज़। और एक भी लीफ ट्रीज़ पर नहीं रही। द कॉर्न थे जो टोटली डिस्ट्रॉय हो गए थे। और जो लेंचो था वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और द स्टॉर्म है पास और तूफ़ान थम गया। लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचा और लेंचो ने कहा कि इस जगह अगर एक प्लेग ऑफ लॉक्टस आ जाता, यानी छोटे जो कीड़े खेत में लगते हैं, अगर वो आ जाता तो बेहतर होता। हिज हेल स्टॉर्म ने तो हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। अब हमारे पास कोई भी अनाज नहीं है। और दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन। और वो रात बहुत ज़्यादा दुखी गुजरी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमने जो कुछ भी किया वो अब कुछ भी नहीं बचा। अब देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प करे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर आपको आपकी कॉपी में करने हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।